Good morning students. This video is basically for BTech first year. We have already discussed rank of the matrix. Today we will discuss linear system of equations. Consider the linear system of equations a1x b1y c1z that is equal to d1, a2x b2y plus c2z is equal to d2, a3x plus b3y plus c3z is equal to d3. We can represent this form, that is a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3, x y z is equal to d1 d2 d3. This is called coefficient matrix. This is called coefficient matrix. This is called column unknown matrix. And this is called column constant matrix. And we can represent this form, that is Ax is equal to B. This is A, this is capital X, it means number of unknowns, and this is B, that is constant. This is equal to Ax is equal to B. There are two type of linear equations. Number one, non-homogeneous linear equation, and number two, homogeneous linear equations. First of all, we will discuss non-homogeneous linear equations. Non-homogeneous linear equation, that is the type Ax is equal to B. B is not equal to 0. This is called non-homogeneous linear equations. And Ax is equal to 0. This is called homogeneous linear equation. Coefficient matrix. The coefficient matrix A, this is coefficient matrix, this is number of unknowns, this is the constant matrix. A रेशो B, इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोलते हैं हम अगमेंटेड मैट्रिक्स. A रेशो B, A के साथ कोफिशिएंट मैट्रिक्स के साथ जो कांस्टेंट है हमारे साथ, उसको रेशो में रिप्रेजेंट करना इज कॉल्ड द अगमेंटेड मैट्रिक्स. नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन Ax is equal to B. Ax is equal to, there is a two system, consistent, inconsistent. If rank of augmented matrix is not equal to rank of A, then the system has inconsistent. Rank of augmented matrix, it means ये complete matrix का rank check करेंगे सबसे पहले हम, उसके बाद हम rank of A, इसको हम हटा देंगे, सिर्फ इस matrix का rank check करेंगे. अगर ये matrix का rank equal नहीं है, then you can say that the system has inconsistent. Similar as consistent. Consistent में two cases arise हो रहे हैं. Number one, rank of augmented matrix. It means ये complete matrix का rank equal है किसके? Rank of A के. इसको हम हटा देंगे, सिर्फ rank of A check करेंगे, और किसके इक्वल आ जाएगा? नंबर ऑफ अननोन्स के. व्हाट इज द नंबर ऑफ अननोन्स? नंबर ऑफ अननोन्स दैट इज एक्स वाई जेड. जो भी आपके पास लीनियर सिस्टम इक्वेशंस में एक्स वाई जेड गिवन होंगे वो हमारे नंबर ऑफ अननोन्स यानी कि स्मॉल एन को रिप्रेजेंट करेंगे. अगर रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन्स, देन द सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन. एंड नंबर टू, रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स यानी कि कंप्लीट मैट्रिक्स का रैंक अगर इक्वल आएगा रैंक ऑफ ए के और लेस देन है किसके? एन के, यानी कि नंबर ऑफ अननोन्स, देन द सिस्टम हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन. ये पूरा प्रोसेस हमारा किसका है? नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन का. बेसिकली कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन हमारे पास नॉन होमोजीनियस का आएगा. उसके अकॉर्डिंगली आपको 3 केसेस को ड्राइव करना है. इनकंसिस्टेंट के लिए
नॉट इक्वल आएगा रैंक ऑफ ए का तो सिस्टम हमारा क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट। अगर सिस्टम हमारा इक्वल है रैंक ऑफ ए के और नंबर ऑफ अननोन्स के तो हम कहेंगे यूनिक सॉल्यूशन है। सिमिलर एज अगर रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए और लेस देन एन देन द सिस्टम हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। We take an example. The linear system of equations 2x plus 6y plus 11 is equal to 0, 6x plus 20y minus 6z plus 3 is equal to 0 and 6y minus 18z plus 1 is equal to 0. We can represent augmented matrix. 2, 6, z नहीं है इसलिए एलिमेंट 0, रेशियो माइनस 11, पॉजिटिव 11 क्योंकि b किसके इक्वल होगा, 2x प्लस 6y इज इक्वल टू माइनस 11। इक्वल टू साइड में हम कांस्टेंट वैल्यू को रखते हैं इसलिए हमने माइनस 11 को यहाँ पुट किया। 6, 20 माइनस 6 रेशियो माइनस 3, x नहीं है एलिमेंट 0, 6 माइनस 18 रेशियो माइनस 11। दिस इज ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स से a रेशियो b से। Now this is the augmented matrix. We can apply the transformations. R2 पर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किया, R2 माइनस 3R1, इसे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 माइनस 6 ये वैल्यू हमारे पास 0 हो जाएगी। हमें मैक्सिमम 0 को अरेंज करना है अपनी मैट्रिक्स के अंदर, जैसे कि प्रोसेस में हमने रैंक ऑफ द मैट्रिक्स फाइंड आउट किया था। मैक्सिमम 0 अरेंज करना है हमें, उसी टाइप से हमें इस मैट्रिक्स के अंदर भी मैक्सिमम 0 को अरेंज करना है। फर्स्ट एज इट इज 2, 6, 0 रेशियो माइनस 11। ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इक्वल है a रेशियो b के। R2 माइनस 3R1, 6 माइनस 6 0, 20 माइनस में 18 2, माइनस 6 एज इट इज, माइनस 3 और प्लस 33 दैट इज 30। इसको एज इट इज रखेंगे। फिर से ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किया R3 पर, R3 माइनस 3R2, इस वैल्यू को 0 बनाना है। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के इक्वल चल रही है ये मैट्रिक्स हमारी। 2, 6, 0 रेशियो माइनस 11, 0, 2 माइनस 6 रेशियो 30, 0 माइनस 0 0, 6 इंटू में 6 माइनस 6 0, 18 माइनस में माइनस माइनस प्लस 18 0, माइनस 1 और प्लस R3 माइनस 1 माइनस 3 इंटू में 30, माइनस 90 माइनस 1 माइनस 91। इससे ज़्यादा हम इसमें मैक्सिमम 0 अरेंज नहीं कर सकते। इस रो में देखिए हम 2 को कॉमन ले लें या 2 से डिवाइड कर दें तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किया हमने किस पर, R2 पर। R2 को हमने किससे डिवाइड कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया। 2, 6, 0 फर्स्ट मैट्रिक्स फर्स्ट रो एज इट इज 0, 2 से डिवाइड किया 1, माइनस 3 रेशियो 15, 0, 0, 0 माइनस 91। अब इससे ज़्यादा हम मैक्सिमम 0 अरेंज नहीं कर सकते। अब हम अपने सिस्टम पे चलेंगे। सबसे पहले हमें चेक करना है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक। रैंक किस पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज पर। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है हमारे पास, अगर पूरी मैट्रिक्स का रैंक चेक करें तो रैंक कितना आ गया हमारे पास, इसमें एलिमेंट है इसमें भी एलिमेंट है, तो रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कितना हो गया हमारे पास 3। ओके और अगर हम ओनली रैंक ऑफ ए की बात करें तो रैंक ऑफ ए कितना है, इसको रिमूव कर देंगे, सिर्फ इस मैट्रिक्स का रैंक चेक करेंगे। जब आप इस मैट्रिक्स का रैंक चेक करोगे तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज और ये हमारे जो लास्ट रो वो कंप्लीटली जीरो है, तो इस मैट्रिक्स का रैंक कितना आ गया, रैंक ऑफ ए कितना हो गया हमारे पास 2। इसका मतलब क्या, रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक 3 है और रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स का रैंक 2 है। Rank of augmented matrix is not equal to rank of A because rank of augmented matrix is 3 or rank of A that is equal to 2. तो 3 is not equal to 2 then the system has inconsistent. तो हम क्या लिखेंगे, the system has inconsistent.
We take another example. Plus 2y plus z is equal to 3, 2x plus 3y plus 2z is equal to 5, 3x minus 5y plus 5z is equal to 2, 3x plus 9y minus z is equal to 4. We can express augmented matrix 1, 2, 1 ratio 3, 2, 3, 2 ratio 5, 3 minus 5, 5 ratio 2, 3 9 माइनस 1 रेशियो 4. इसको लेट कर लेते हैं. अगमेंटेड मैट्रिक्स के इक्वल है, ए रेशियो बी मान लिया हमने इसे. प्रोसेस क्या है? मैक्सिमम ज़ीरो अरेंज करना है, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स को फाइंड आउट करना है. ये वो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा रैंक ऑफ द मैट्रिक्स. वी कैन अप्लाई द ट्रांसफॉर्मेशन R2 चेंज टू R2 माइनस 2R1, R3 change to R3 minus 3R1 and similar as R4 change to R4 minus 3R1. बेसिकली कॉन्सेप्ट हमें यहाँ और यहाँ पर ज़ीरो को अरेंज करना है. यहाँ ज़ीरो कब अरेंज होंगे? जब हम इसमें से इसको लेस कर देंगे. तो ये ट्रांसफॉर्मेशन हमने अप्लाई की है. एगमेंटेड मैट्रिक्स के इक्वल चल रही है मैट्रिक्स. इक्विवेलेंट का सिंबल भी आप यूज़ कर सकते हैं. फर्स्ट एज इट इज़ 2 minus 2 0, 3 minus 4 minus 1, 2 minus 2 0, 5 minus 6 minus 1. Similar as R3 minus 3R1, 3 minus 3 0, minus 5 minus 6 minus 11, 5 minus में 3 2 and 2 minus 9 minus 7, 3 minus 3 3 minus 4 ratio minus 5. ये हमारी मैट्रिक्स. नाउ अब हमें एलिमेंट को यहाँ ज़ीरो बनाना और यहाँ ज़ीरो बनाना. R3 पर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे हम लोग. R3 माइनस 11R2 एंड R4 चेंज टू R4 प्लस में 3R2. 1 to 1 अगमेंटेड मैट्रिक्स के इक्वल चल रही है मैट्रिक्स. रेशियो 3 0 minus 1 0 ratio minus 1 0, minus 11 plus 11 0, 2 as it is, minus 7 plus 11 that is 4. R4 पर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किया. 3 minus 3 that is 0, minus 4 ratio minus 8. Now we can apply R4. R4 change to R4 plus 2R3. First as it is 1 to 1 ratio 3, 0 minus 1 0 ratio minus 1, 0 0 2 ratio 4. ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर रहे हैं R4 पर. 0 0 minus 4 plus 4 0, minus 8 plus 8 0. मैक्सिमम ज़ीरो अरेंज कर सकते हैं. इस मैट्रिक्स को हम, इस रो को हम 2 से डिवाइड कर दें तो R3 डिवाइडेड बाय 2, ये ट्रांसफॉर्मेशन भी हम इस पर अप्लाई कर सकते हैं. 1 to 1 रेशियो 3, 0 minus 1 0 रेशियो minus 1, 0 0 1 रेशियो 2, 0 0 0 0. नाउ इससे ज़्यादा मैक्सिमम ज़ीरो हम अरेंज नहीं कर पाएंगे. अब हम फाइंड आउट करेंगे अगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक. कंप्लीट मैट्रिक्स का रैंक क्या होगा? नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज. तो रैंक ऑफ द अगमेंटेड मैट्रिक्स इज 3. अब रैंक ऑफ ए की बात करें तो बी को रिमूव कर देते हैं. अगर बात करें नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज तो रैंक ऑफ ए भी कितना हो गया हमारे पास? 3. अभी क्लियर किया मैंने कि रैंक ऑफ अगमेंटेड मैट्रिक्स इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए और इज इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन्स. तो नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं हमारे पास? x y z दैट इज 3. n की वैल्यू भी कितनी हो गई? 3. रैंक ऑफ अगमेंटेड मैट्रिक्स इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू n, दैट इज द सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन. देन द सिस्टम हैज unique
solution. We can represent the augmented matrix, that is A ratio B, 1, 2, 3 ratio 6, 1, 3, 5 ratio 9, 2, 5 A ratio B. Find A and B and define the number of solution, no solution, number 2 a unique solution and number 3 infinite number of solution. तीनों केसेस को हमने डराइव करना है अपने इस मैट्रिक्स में. सबसे पहले हमने ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किया R2 पर, R2 माइनस R1 और R3 पर अप्लाई किया R3 माइनस 2R1. 1, 2, 3 रेशियो 6, 1 minus 1 0, 3 minus 2 1, 5 minus 2, 5 minus 3 2 and 9 minus 6 3. 2 minus 2 0, 5 minus 4 minus. Now we can apply R3 minus R2, 0 minus 0, 1 minus 1 0, A minus 6 minus 2 A minus 8 and B minus 12 minus 3 B minus 15. इससे ज़्यादा मैक्सिमम जीरो हम अरेंज नहीं कर सकते इस मैट्रिक्स में. सबसे पहले हमें नो सोल्यूशन के लिए बात करना है. नो सोल्यूशन क्या होता है हमारा, यानी कि इनकंसिस्टेंट. इनकंसिस्टेंट कब होगा, जब रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स किसके इक्वल नहीं होगा, रैंक ऑफ ए के. तो ए की वैल्यू ए इज इक्वल टू 8 एंड बी इज नॉट इक्वल टू 15. नंबर 1 केस के लिए यानी कि नो सोल्यूशन, इट मीन्स इनकंसिस्टेंट. ए की वैल्यू को 8 ले लें हम लोग और बी को रिमूव करें तो रैंक ऑफ ए कितना आ जाएगा हमारे पास, 2. ए की वैल्यू को 8 पुट किया, ये वैल्यू 0 बन गई, इसको रिमूव करते हैं तो इस पूरी मैट्रिक्स का रैंक हमारे पास कितना आ जाएगा, 2. ए इज इक्वल टू 8, बी इज नॉट इक्वल टू 15. 15 की जगह हम 14 ले सकते हैं और कंप्लीट मैट्रिक्स का रैंक चेक करें तो यहाँ पर एक एलिमेंट है हमारे पास. इट मीन्स नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी हो गई हमारे पास, 3. तो रैंक ऑफ ए 2 और रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज 3. Rank of augmented matrix is not equal to rank of A, then the system as inconsistent, it means no solution. फर्स्ट केस हमने डराइव किया, बात करें सेकंड केस की. ए यूनिक सोल्यूशन. यूनिक सोल्यूशन कब होगा, जब A is not equal to 8 and B is not equal to 15. A की वैल्यू अगर हम 7 को कंसीडर कर लें तो ये -1 और यहाँ पर भी हम कुछ और वैल्यू ले लें तो कंप्लीट मैट्रिक्स का रैंक जो होगा वो 3 होगा. सिमिलर एज अगर ए मैट्रिक्स की बात करें, ए की वैल्यू को हम 8 नहीं कंसीडर कर रहे हैं, कुछ भी वैल्यू को कंसीडर कर सकते हैं, तो हमारे पास पूरी मैट्रिक्स का रैंक यानी कि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक कितना आ जाएगा, 3. और रैंक ऑफ ए भी कितना हो जाएगा हमारे पास, 3. और नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं हमारे पास, x y z, वो भी क्या हो गए हमारे 3. ऑगमेंटेड मैट्रिक्स is equal to rank of A is equal to number of unknowns, then you can say that the system has unique solution. वही हमें derive करना था. And number 3, infinite number of solution. Infinite number of solution. A is equal to 8, B is equal to 15. A की वैल्यू को 8 कंसीडर किया तो रैंक ऑफ A कितना आ गया, 2, क्योंकि ये वैल्यू 0 हो गई हमारे पास. B की वैल्यू को 15 कंसीडर किया तो ये कंप्लीटली रो क्या हो गई, 0. तो भी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक कितना आ गया हमारे पास, 2. नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं हमारे पास, 3. तो रैंक ऑफ A इज इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लेस देन 3 यानी कि लेस देन n, देन द सिस्टम हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन. वही केसेस हमने डराइव करना है. थैंक यू स्टूडेंट्स. हम इसके बाद डिस्कस करेंगे होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस, दैट इज नॉन होमोजेनियस.